Namaste everyone and welcome to this series where we are solving all the 114 sets of CAT DLR section from CAT 17 till CAT 2024. Let's look at another set, CAT 2018 slot 1. Again a set on quant-based reasoning. Let's apply our FATE framework that you are very familiar by now. Familiarity, ambiguity, time consumption and extra info in questions. Let's quickly apply to this particular set. So a company administers a written test comprising 3 sections of 20 marks each और इस तरह का एक टेबल दिया रहेगा. Marks out of 20, there are 3 sections: GI, written English, general awareness. Does this look familiar? Yes, this is what we have been doing for the past 20 odd days. Filling missing values in table, understanding the properties of tables and trying to figure out कि वो values कैसे fill in हो. If you have followed the series, this should be very familiar to you. So familiarity में this rates very high. Let's look at ambiguity in clues or directions. Candidates who score less than 70% marks in 2 or more sections. 20 mark का पेपर है. 70% would mean 14 marks. Easy enough. 14 marks से अगर आप कम लाते हो, score less than 14 marks in 2 or more sections are disqualified. So just quickly glance कि कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है क्या. फॉर एग्जाम्पल चेतन के 2 सेक्शंस में 14 से कम मार्क्स हैं, तो कैन आई डायरेक्टली से कि चेतन इज डिस्क्वालिफाइड? यस, दैट इज द क्लू. सो इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी एक बार क्लूज भी चेक कर ले. नो टू कैंडिडेट्स एट द सेम कॉम्पोजिट स्कोर. देयर मे बी अ वे जिससे कॉम्पोजिट स्कोर निकल रहा होगा. Indu was recruited. D, H and I had scored the same marks in GA. So straightforward clues and there is absolutely no ambiguity and therefore ambiguity wala part is in our favor. No ambiguity, will apply a tick and say that this is favorable for us. T is time consumption. There are 6 clues, multiple large table का values. Time ज़्यादा लग सकता है, but remember this is CAT 2018, much before COVID, जहाँ पर the amount of time allowed was lot more than what you have now. So not really worried about time consumption, but I'll put a question mark. Extra info in questions देख लेते हैं. So which of the following statements must be true? Definite 4 options. Which of the following must be false? Definite 4 options. And then there are 2 theta. Absolutely no extra info in questions. मतलब जो भी कुछ solve होना है, नहीं theta questions, but both the theta questions have extra information. My mistake. Both the questions, if all the candidates except Ajay and Danish had different marks in DI, so I just thought कि straight away answer आ रहा है, but if का condition दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा इन्फो है. एक्स्ट्रा इन्फो इज ए नॉट आर फेवर. तो एफ और ए डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील, द गट फीलिंग दैट यू हैव इन द एग्जाम के टाइम कंजम्पशन कितना है, यू कैन टेक दिस कॉल. आई वुड हैव पिक दिस सेट. सेकंड या थर्ड सेट मेरा डेफिनेटली होता बिकॉज आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस. मैं यही सॉल्व करता आ रहा हूँ 20 दिन से, तो मुझे लग रहा है यार ये वैल्यूज फिल इन करके बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए. सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, लेट्स क्विकली जंप टू द पार्ट ऑफ सॉल्विंग द सेट नाउ. सो एक छोटा सा चेंज और करेंगे. जब आप अपनी रफ शीट में ये टेबल ड्रॉ करेंगे तो यू विल क्रिएट वन मोर एक्स्ट्रा कॉलम फॉर कॉम्पोजिट स्कोर, दैट्स इट. बट इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है. इसी तरह का सेम टेबल. आई विल इरेज द क्वेश्चंस, विल जस्ट लुक एट द क्लूज. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. क्वेश्चंस इरेज कर दिए हैं. मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम कॉम्पोजिट स्कोर का बना लिया है. लेट्स क्विकली एनालाइज द कंडीशंस वन बाय वन. So company administers a written test comprising 3 sections, 20 marks each, DI, written English, WE and GA. For recruitment, a composite score for a candidate out of 80. तो composite score जो है वो out of 80 है. So this maximum score is out of 80. And how is this calculated? By doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in the other 2 sections. तो DI के marks double करके बचे हुए 2 में add करना है. There are some people जिनके तो हमें सारे marks पता है. For example, look at C, चेतन के लिए 19 का double is 38. 38 में 16 add कर देते हैं तो 38 और 6 44 और 10 54. I can very well write the composite score out of 80 for Chetan is 54. So I hope this clue is clear. फटाफट बचे हुए जिनके वैल्यूज पता है उनको भी फिल कर देते हैं. Let's do it for E. 12 का डबल 24 और 34 is 58. Let's do it for F. 15 का डबल 30 और 17 47. और कोई वैल्यू हमें तीनों की नहीं पता है. But in general, suppose we assume some value here, तो इसका डबल प्लस 20 ये टोटल composite score B का आ जाएगा. तो composite score निकालना should not be too difficult. Candidates who score less than 70% marks in 2 or more sections are disqualified. 70% से कम, थोड़ी देर पहले देखा था 20 का 70% will be 14. So our key number that we have to keep in mind is simply 14. 14 से अगर कम है 2 sections या 2 से ज्यादा में तो disqualify कर देंगे. तो just quick glance करके देख लेते हैं कि चेतन के 4 और 12 है. 14 से कम है 2 sections में तो चेतन disqualify हो जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग करनी है उनको कंपनी को रिक्रूटमेंट के लिए, तो चेतन इज नॉट सिलेक्टेड, चेतन इज नॉट रिक्रूटेड.
8 और 15 में 15 ज्यादा हो गया तो नहीं है, 12, 18, 16 तीनों ज्यादा है, 7 और 10 दोनों 14 से कम हो गए, तो आई कैन डेफिनेटली से एफ विल बी रिजेक्टेड। और किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? यस, बी के बारे में बोल सकते हैं। बी के दो स्कोर्स हैं 9 और 11, दोनों ही 14 से कम है, तो बी इज डेफिनेटली नॉट रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द रेस्ट। जो बचे हुए हैं, तो 3 अभी हम बोल पाए बिकॉज मिसिंग डेटा बहुत सारा है, बट ये 3 तो डेफिनेटली रिक्रूट नहीं होंगे। जो बचे हुए 7 है, फ्रॉम अमंग द रेस्ट द 4 विद द हाईएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर्स आर रिक्रूटेड। तो जैसा एक्सपेक्टेड होगा, टॉप के स्कोरर्स को 4 को हम रिक्रूट कर लेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। इफ 4 और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई रिक्रूटेड। सपोज सीरी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर जो भी स्कोर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज टॉप 4 सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विल सिलेक्ट all the people who have qualified by not scoring less than 70% in 2 or more subjects. 10 candidates appeared for the written test जिसका डेटा tabulate किया हुआ है, so that is fine. Some marks in the table are missing but the following facts are known. एक एक करके clues को पढ़ जाते हैं। No two candidates had the same composite score. तो इस first clue को मैं अपने लेवल पे कैसे लिख लूंगा? No two values are same. So इसे इन जनरल मेरा कन्वेंशन ये रहता है कि मैं x इज नॉट इक्वल टू y करके लिख लूं, जिससे मुझे पता रहे कि इस पूरे सेट में कोई भी दो वैल्यू x या y उठा लोगे तो सेम नहीं होंगी। तो मतलब 54 और कहीं नहीं आ सकता, ये ऊपर मैंने अपने कन्वेंशन में लिख दिया। डज दैट मीन बाकी जगह ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। विच मीन्स 11 इज द स्कोर फॉर बाला, आई कैन हैव 11 स्कोर फॉर दानिश, आई डोंट नो, जरूरी नहीं है, होगा नहीं होगा नहीं पता, पर दो स्कोर्स बचे हुए जगह सेम आ सकते हैं। पर लास्ट कॉलम में तो गारंटी है कि दो स्कोर सेम नहीं आएंगे, सो आई हैव यूज्ड अप दिस क्लू, आई विल नॉट रेफर टू इट अगेन। ए वाज अ यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन रिटन इंग्लिश। डब्ल्यूई में अजय का यूनिक हाईएस्ट स्कोर था। अब यूनिक हाईएस्ट स्कोर का मतलब, जैसा आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, हाईएस्ट से अपने आप पता नहीं पड़ता, दो लोगों के इक्वल होते हुए हाईएस्ट हो सकते हैं। सो दोनों ने 20 में से 20 ले आए और हाईएस्ट हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। अभी हम लिस्ट देखते हैं, तो लिस्ट में ई के 18 मार्क्स हैं, 18 से ज्यादा लाने पड़ेंगे अगर अजय को हाईएस्ट लाने। तो 18 से ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 19 हो सकती है या फिर 20 हो सकती है, हमें नहीं पता। जो भी वैल्यू होगी वो कहीं और रिपीट नहीं होगी, इतना ध्यान रखना है बस। आई होप ये क्लियर है। और अब इसका कॉम्पोजिट स्कोर भी निकाल सकते हैं फॉर द टू पॉसिबिलिटीज। तो 8 का डबल 16, 16 और 16 32, 32 में अगर 20 वाली वैल्यू ले लो तो 52, तो मतलब अपर लिमिट की पॉसिबिलिटी वाला 52 और लोअर लिमिट में एक कम कर देते हैं 15। तो अगर मैं 19 केस लूंगा तो कॉम्पोजिट स्कोर 51 और अगर 20 लूंगा तो कॉम्पोजिट स्कोर 52। इतना पार्ट बहुत अच्छे से आई होप क्लियर है। सो वी हैव यूज्ड अप दिस क्लू दैट अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई। अमंग द 4 रिक्रूटेड, गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर। इससे 2-3 अच्छी चीजें मिली। एक तो गीता रिक्रूटेड है, और जो रिक्रूटेड है उसमें लीस्ट कॉम्पोजिट स्कोर है। तो जनरली दिस इज माय वे ऑफ राइटिंग दिस, कि इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा एल लिख लेंगे, हाईएस्ट होता तो मैं एच लिख लेता, जिससे क्लैरिटी आ जाती कि ये जो 4 लोग जिनके ऊपर टिक आएगा, विल ट्राई एंड फाइंड 4 पीपल जिनके ऊपर टिक आएगा, उनमें से गीता विल हैव द लीस्ट कॉम्पोजिट स्कोर, 4th रैंकर है ऐसा मान लो। आई होप ये पार्ट क्लियर है। सो वी आर डन विद द थर्ड क्लू। आई वाज रिक्रूटेड, तो बहुत बढ़िया क्लू, आई को रिक्रूट कर लिया है, टिक लगा देते हैं। आई के बाय द वे स्कोर्स नहीं पता, बट डेफिनेटली फिर ये पता है कि दोनों में 14 से ज्यादा होंगे, पर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। फिफ्थ क्लू में चलते हैं। डी, एच एंड आई हैड स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन जीए। जीए में डी, सपोज एक्स लेते हैं, एच एक्स और आई के भी एक्स, इन तीनों के सेम मार्क्स हैं। तो ठीक है, अभी कुछ और कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक्स करके लिख लिया। सो वी हैव यूज्ड अप दिस क्लू। आई एंड जे बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। आई और जे के 100% मतलब 20 के 20 मार्क्स आए पूरे किसी एग्जैक्टली एक सेक्शन में। जतिन के तो 2 सेक्शन के मार्क्स पता है, 16 और 14। तो फैबुलस क्लू, वी नो फॉर श्योर दैट जतिन हैज स्कोर्ड 100% मार्क्स इन एग्जैक्टली वन सेक्शन, तो वो ये सेक्शन होगा। अगर ये पता पड़ गया तो जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर भी पता पड़ जाएगा। 20 का डबल 40, 40 और ये दोनों का टोटल 30, 40 और 30 कितना टोटल हो गया? 70। सो वी हैव यूज्ड अप दिस पार्ट ऑफ द क्लू। एंड के बाद वाला बचा है, जतिन कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन आई। जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर, मतलब मैं डायरेक्टली इंदु का कॉम्पोजिट स्कोर 60 लिख सकता हूं। सो वी हैव यूज्ड अप दिस क्लू एज वेल। हमें जो भी पैराग्राफ से नोट डाउन करना था हमारी रफ शीट में, वो हम कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस टेबल एंड द क्लू कि एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे, इतना ही पता है। ये पता है कि तीनों एक्स के बराबर है। एक पार्ट जो बचा है वो ये कि इंदु का किसी एक सेक्शन में 20 स्कोर करना बचा है, बिकॉज इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% मार्क्स। तो अब मेरा डाउट ये है कि ये 20 यहां भी आ सकते हैं, ये 20 यहां भी आ सकते हैं। 2 चॉइसेस हैं, 2 ही केस बनेंगे। डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग केसेस, क्रिएट अ केस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू अज्यूम
कि 20 यहां मान लेते हैं, इंदु का 20 स्कोर यहां है, अगर 20 यहां है तो 20 का डबल 40 प्लस 8, 48 प्लस एक्स, इसका कॉम्पोजिट स्कोर 48 प्लस एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू 60। तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये तीनों के 12 हो सकते हैं क्या, चेक कर लो। तो हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि रिपीट अलाउड नहीं है, तो 12 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इंदु वाज रिक्रूटेड, तो इंदु के दो स्कोर्स 14 से ज्यादा चाहिए, पर ये 8 और 12 दोनों स्कोर 70% से कम हो जाएंगे, तो 12 दिक्कत दे रहा है। सो देयरफॉर दिस 12 कैन नॉट कम। नाउ आई एम 100% श्योर दैट 20 यहां नहीं आ सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 20 मान लिया, 20 माना तो 28 और x मिलाकर 60 कॉम्पोजिट स्कोर करना है। वहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो 12 आ रहा है, पर 12 आने से 8 और 12 दो स्कोर्स 70% की जो कंडीशन थी, हु स्कोर लेस देन 70% आर डिस्क्वालिफाइड, उसको मीट कर जाएंगे, तो इंदु को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। बट इंदु इज रिक्रूटेड, ये क्लियरली बोला था। तो विच मींस ये जो हमने 20 ग्रीन कलर से एजम्पशन लिया है वो गलत है। 20 इंदु का 100% मार्क्स डीआई में नहीं आएगा, इट हैज टू बी इन जीए, एंड दैट इज अ वंडरफुल वंडरफुल क्लू। व्हाई? बिकॉज जैसे ही आपको जीए के 20 पता पड़ गए, तो तीन वैल्यूज इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। अगर तीन वैल्यूज इक्वल वाला पार्ट गिवन है, तो this set becomes extremely easy to solve now, because now I can allocate 20, 20 and this 20. Why? Because ये तीनों स्कोर सेम दिए थे, और अब पता है कि 100% मार्क्स के कारण यही 20 है। So hopefully case should be pretty easy to solve now. अब मैं इंदु का स्कोर डीआई में भी निकाल सकता हूँ। So जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसका डबल करके 28 ऐड करना है। तो मैं 60 में से 28 माइनस कर लेता हूँ, 60 में से 28 माइनस करो 32, 32 डबल वैल्यू है यहाँ का, मतलब यहाँ का स्कोर 16। और चेक कर लो 16 और 20 दो वैल्यूज 14 से ज्यादा चाहिए थी, वो मिल गई। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। परफेक्ट। अब 20 20 20 के कारण दानिश का कॉम्पोजिट स्कोर भी निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। 8 का डबल 16, 16 और 15 31 एंड 20 51। नाउ नो टू कॉम्पोजिट स्कोर्स आर इक्वल, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो 51 अगर यहां आ चुका है तो यहां 51 नहीं आएगा, सो यहां पे 52 ही आना पड़ेगा, और 52 आने के लिए यहां 20 ही आना पड़ेगा, 19 नहीं आ सकता। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ऑलराइट। अच्छा, इंदु इज रिक्रूटेड, ये हमें डेफिनेटली पता है, इंदु वाज रिक्रूटेड, तो टिक लगा दिया। अब रिक्रूटमेंट दो लोगों का और बचा है, जिसमें से गीता का स्कोर लीस्ट है। अच्छा, इंदु का स्कोर कितना है 60, और जतिन का स्कोर उससे भी ज्यादा है 70, और डेफिनेटली तीनों में इसने तो 14 के ऊपर लाया, हमें तो कम से कम दो में चाहिए थे। तो कैन आई से दिस फॉर श्योर विथ 100% गारंटी दैट जतिन हैज टू बी रिक्रूटेड, क्योंकि टॉप 4 को रिक्रूट करना है। अब इंदु को रिक्रूट कर लिया आपने 60 नंबर पे, तो अगर जतिन के ज्यादा स्कोर है तो ऐसा नहीं करना है कि जैसा कैट में क्राइटेरिया हो जाता है कि नहीं नहीं रिजर्वेशन है, क्राइटेरिया है, ज्यादा स्कोर वाले को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे कैट में, क्योंकि 10 12 का ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा सेट है। 60 से ज्यादा नंबर ला रहा है, 70 ला रहा है, तो जतिन को कंपल्सरली सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो 20 16 14 70 तो ये आ गया। तीन लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अब चौथा पर्सन कौन रिक्रूट होना बाकी है। तो वी हैव अजय एज अ कैंडिडेट 52 कॉम्पोजिट स्कोर के साथ, दानिश एज अ कैंडिडेट 51 कॉम्पोजिट स्कोर के साथ, ई एज अ कैंडिडेट 58 कॉम्पोजिट स्कोर के साथ, और एच एज अ कैंडिडेट जिसका अभी डब्ल्यू का स्कोर नहीं पता, तो कॉम्पोजिट स्कोर नहीं पता। बट बिकॉज टॉप 4 को सिलेक्ट करना है, एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, टॉप 4 को सिलेक्ट करना है, कहना है कि ए डी और ई में, मैं लिख देता हूं यहां पे ए डी और ई, और चौथा पर्सन एच, इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो। ए का स्कोर है 52, डी का स्कोर है 51, ई का स्कोर है 58, और इसका हमें नहीं पता, वी डोंट नो द स्कोर ऑफ एच। बट बिकॉज मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है, कैन आई से दिस फॉर 100% गारंटी दैट ए को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ई बैठा है जिसका स्कोर ज्यादा है, डी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ई बैठा है, तो चॉइस रिमेन्स बिटवीन ई एंड एच। आई कैन अप्लाई अक्रॉस टू ए एज वेल एज डी। नाउ ईदर इट इज ई और इट इज एच जो रिक्रूट होगा। अब एच के लिए पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या 58 से ज्यादा आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो केस भी बन सकता है। 58 से डेफिनेटली ज्यादा आ गया तो एच को ही कर लेंगे, 58 से डेफिनेटली कम आ गया तो ई को कर लेंगे। सो विल बी एबल टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। ये वैल्यू 20 है, लेट्स एलोकेट अ वेरिएबल पी हियर। तो 5 का डबल 10, 10 प्लस 20 30 प्लस पी, कहना से यहां का कॉम्पोजिट स्कोर आएगा 30 प्लस पी। अब मैक्सिमम स्कोर कितना आ सकता है इसका, मैं बोलूंगा मैक्सिमम आएगा जब पी 20 हो जाए, 20 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, तो 30 प्लस 20 इसका स्कोर मैक्स, एच का स्कोर मैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 आ सकता है, 20 मिडिल में आ सकता है। तो 30 प्लस 20 मैक्स स्कोर कितना आ सकता है 50। अब 58 और 50 में डेफिनेटली ई बड़ा है। अच्छा बाय द वे, वैसे तो पी 20 भी नहीं ले सकते क्योंकि यूनिक हाईएस्ट स्कोर अजय का है, तो यहाँ पे आप 19 वैल्यू ज्यादा बहुत से बहुत पुट कर सकते हो। 49 इसका पीक स्कोर आ सकता है कॉम्पोजिट एच का। बट अभी के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई नो दिस फॉर श्योर कि ई का स्कोर ज्यादा आएगा,
तो डेफिनेटली ई इज दैट फोर्थ कैंडिडेट हु इज रिक्रूटेड, तो एच को रिजेक्ट कर देंगे, एच रिक्रूट नहीं होगी. सो ई, जी, आई एंड जे, दीज विल बी द 4 कैंडिडेट्स दैट विल बी रिक्रूटेड. अब अगर जी को देखते हैं तो हमने अभी इन लोगों में ई को तो रिक्रूट कर लिया, एच का स्कोर डेफिनेटली काफी कम आ रहा है, मैक्स 49 जा सकता है, 50 भी नहीं आ सकता, 49 आ सकता है. तो हमें पता है जो ए है वो नेक्स्ट हायर कैंडिडेट था 52. ए को हमने रिजेक्ट करा है, जी को सिलेक्ट करा है. जी का भले ही टॉप 4 में लोएस्ट हो, लेकिन ए से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ए ने अपना क्राइटेरिया 2 में 14 से ज्यादा लाने वो तो फुलफिल कर लिया था. डिस्पाइट दैट ए को रिजेक्ट करा है, मतलब ए एलिजिबल तो था रिक्रूटमेंट के लिए, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है. डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद सिलेक्ट नहीं करा है, मतलब 54 से ज्यादा स्कोर गीता का रहा होगा. सो कैन आई से दिस फॉर श्योर दैट दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 52. ये क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है कि 52 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 52 या उससे कम होता, इक्वल तो हो ही नहीं सकते, कम होता तो हम अजय को सिलेक्ट कर लेते. द फैक्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड गीता मींस गीता इज इन टॉप 4. तो जो फिफ्थ कैंडिडेट दिख रहा है, पोटेंशियल फिफ्थ कैंडिडेट, उससे ज्यादा स्कोर तो लाना पड़ेगा. अब यहां का वेरिएबल कुछ मान लेते हैं, लेट्स से एम. तो 14 का डबल 28 प्लस 6 34 प्लस एम को डेफिनेटली ग्रेटर होना पड़ेगा 52 से. तो यहां से ग्रेटर होना पड़ेगा 16 और 18 से ग्रेटर. अच्छा, इक्वल भी अलाउड नहीं है, एम को 18 ले लेंगे तो ये 52 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, है ना. 14 का डबल 18 और 18 36 और 18 और 14 का डबल 28 और 18 46 और 6 एग्जैक्टली 52 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज 52 अजय का स्कोर है. तो 18 से बड़ा, 18 से बड़ा कहने से इसके पास चॉइसेस होगी 19 या 20 की, पर 20 बिकॉज अजय का यूनिक हाईएस्ट स्कोर है, ये हमें क्लियरली गिवन था, अजय वाज अ यूनिक हाईएस्ट स्कोरर, तो मतलब 20 भी नहीं आ सकता. तो एम की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 19. अब 19 होगा तो 14 का डबल, ये सीधे एम की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो विल गेट 14 का डबल 28 और 25 कितना होगा 53. सो जस्ट अबाउट एक ही पॉसिबिलिटी बनी गीता के स्कोर की 53 विच इज मोर देन 52. 54 बन जाता एक और पॉसिबिलिटी अगर ये 20 अलाउड होता, बट 20 नहीं है. तो वी नो डेफिनेटली फॉर श्योर कि गीता का स्कोर इज 53. नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पी. हरिनी का रिटर्न इंग्लिश का स्कोर नहीं पता, उसके कारण 30 प्लस पी की पॉसिबिलिटी नहीं पता, बट रेंज डेफिनेटली पता है. और बाला के लिए यहां नहीं कर सकते हैं कि अगर इसका डीआई का स्कोर के है तो इसका डबल करेंगे और 9 और 11 में ऐड कर देंगे तो 20. तो कह रहे हैं दिस इज 2k प्लस 20. सो k और p ये दो वेरिएबल्स रह गए, बाकी सारा टेबल फिल हो चुका है. लेट्स नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. So I'll erase this part completely and we'll now look at questions. So table filled है, जो भी हमने सॉल्व करा, k और p ये दो ही चीजें नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज हमें डेफिनेटली पता है. Let's look at question number 1. Which of the following statements must be true? True करना है. Jatin's composite score was more than Danish. J का composite score 70, दानिश का 51, डेफिनेटली ट्रू है. अगर 1 ट्रू है तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. तो ओनली 1 या बोथ 1 and 2. अब 1 and 2 मतलब दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. वो बुलेट्स पे मत जाना. तो ओनली 1 या फिर 1 and 2, तो सेकंड वाला चेक करना, थर्ड से तो कोई मतलब नहीं. आई स्कोर्ड लेस देन सी इन डीआई. आई स्कोर्ड लेस देन सी 19 और 16, ये भी ट्रू है भाई. तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2, दैट विल बी आवर आंसर. सेकंड क्वेश्चन मिलते हैं. Which of the following statements must be false? गारंटी है false होना पड़ेगा. B scored same as J in DI. B scored same as J in DI. भाई यहां 20 आ सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी. अगर इसको 20 दे दें तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर 20 एलोकेशन अलाउड है. तो 20 का डबल 40 ये k की वैल्यू 20 रख दी तो ये 60 आ जाएगा, है ना. k 20 रखा तो 22 का 40 और 20 60, पर 60 ऑलरेडी किसी और का है, मतलब k 20 नहीं हो सकता, तो b स्कोर नहीं कर सकता. दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इटसेल्फ. तो ऑप्शन ए फिट बैठ गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आपको बैकएंड पे चेक करना है, यू कैन चेक. ए इज डेफिनेटली फॉल्स. बी का स्कोर डीआई में जे के बराबर नहीं हो सकता, उन्होंने बोला हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फो है. इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ए एंड डी हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई. डीआई में ए और डी के तो 8 नंबर है, इनके तो सेम है, पर इसके अलावा बाकी सबके डिफरेंट है. बाकी सबके डिफरेंट है मतलब आई कैन से कि ये जो k की वैल्यू है ये किसी और वैल्यू के बराबर नहीं होगी. ठीक है भाई, दिस इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. आगे क्या बोला है, एंड बी's कॉम्पोजिट स्कोर वाज लेस देन C's कॉम्पोजिट स्कोर. B का कॉम्पोजिट स्कोर वाज लेस देन C का कॉम्पोजिट स्कोर. तो कहना है 2k प्लस 20 जो है वो लेस देन C का कॉम्पोजिट स्कोर 54 दिया है.
तो विल से 2k इज लेस देन 34, k इज लेस देन 17, k 17 से छोटा है और कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो 17 से छोटा 16 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो अब क्या करना क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बी कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई? मैक्सिमम करना है तो 16 नहीं कर सकते, 15 भी नहीं कर सकते, रिपीट हो जाएगा। 14 भी नहीं कर सकते, रिपीट हो जाएगा। 13 है क्या? कहीं 13 नहीं है, तो अगर मैं k को 13 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, सारी वैल्यूज यूनिक है क्योंकि 13 का रिपीट नहीं हो रहा। और 13 से बढ़ा नहीं रख सकते, 14, 15, 16 तो ऑक्यूपाइड है और कंडीशन दी है कि बी का कॉम्पोजिट स्कोर सी से कम है, तो उससे कंडीशन आ गई 17 से छोटा होना पड़ेगा, 17 भी नहीं रख सकते। तो देयरफॉर गारंटी है कि आंसर हैज टू बी 13। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे, ऑल द कैंडिडेट्स को डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यूई, डब्ल्यूई में सबके मार्क अलग अलग है, तो मतलब पी का कुछ लेना देना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट एच कुड हैव स्कोर्ड? एच कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यूई, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? अब सिंपल काउंटिंग करनी है, 20 हो नहीं सकता, 19 हो नहीं सकता, 18 नहीं हो सकता, 17 की पॉसिबिलिटी लग रही है, 17 रख के देख लेते हैं। 17 अगर रखेंगे तो 30 प्लस 17 47 हो जाएगा, और 47 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो 17 भी नहीं रख सकते। 16 ऑलरेडी यूज्ड अप है तो 16 नहीं रख सकते, 15 नहीं रख सकते, 14 कहीं नहीं दिख रहा है, पी को 14 रखूं तो 14, तो ये आ जाएगा 44। 44 कॉम्पोजिट स्कोर किसी का है क्या? 2k प्लस 20, 2k प्लस 20 कभी गलती से 44 ही डेफिनेटली तो नहीं आ रहा होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो क्या हमारे हाथ में। So we can always put k की value something different. So 14 is the possibility. Definitely answer is 14 because 14 कहीं repeat नहीं हो रहा है और composite score भी उसके कारण match नहीं हो रहे हैं. So that's it. We have answered all the 4 questions. I'll say moderate to tough level set, not that straightforward. But once you look at the solution, you will realize कि there was nothing too challenging. हम इतना तो definitely exam में कर ही सकते हैं. I'll want you to share in comments the time that you took to solve this set. If you have tried it before, in general suggestion is please try the sets before you actually see the video solutions. And then if you haven't tried, try and solve it again on your own without looking at the solutions and try and see whether you have been able to pick all the clues in that structured manner and are able to solve it within given time frame. So that's it from my side. A very interesting set that could have been solved within around 15 odd minutes in the actual exam scenario. Keep solving, keep watching these videos, keep improving your DLR section day by day. Every day we'll be uploading one solution, one set ka solution from CAT 17 till 2024. Make sure that you've solved all the sets irrespective of the level of difficulty. If you do this, I'm pretty sure that you're going to have a fabulous DLR percentile in CAT. That's it from my side. I'll take your leave. Ciao.